Hello everyone, I welcome you all to the Enlightening Chemist. As you all know, we are studying our chapter number 2, that is acid, base and salts of 10th standard, where we had already learned about properties of acids and base. Now we are going to learn about pH scale. Okay, next topic of your chapter, that is pH scale. Guys, as you all know that concentration of H positive ion and OH negative ion play a major role in determining strength of acid. Okay, as concentration of H positive ion is very high, this indicates that acid is very strong in nature. Okay, as the concentration of OH negative ion is high, concentration of any solution is OH negative ion in any solution is if high, then we said that it is very strong base. Okay, now the question arises, is there any way from which we can determine very quickly that which acid is strong and which is very weak? It is just that relation between H positive ion and the strength is just a theoretical way to explain it, but what is about the numerical way? Okay, so we use a universal indicator, but a universal indicator is just a mixture of different kind of indicators that show different color at the different concentration of H positive ion. इतनी बात हुई क्लियर कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करेंगे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, और जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर डिफरेंट कलर शो करता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर. Okay, so universal indicator is just a mixture of different indicators that show different color at the different concentration of H positive ion. और universal indicator से ही फिर हमने बनाया pH scale. What? pH scale. pH scale के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या. देखो, H stand for H positive ion की concentration, concentration of H positive ion. H in pH stand for concentration of H positive ion. And what the P stand for? P is generally derived from a German word that is potence. Potence, और potence का meaning क्या होता है? Power. Okay, so is it clear that P in pH stands for potence, that is power, and H stands for concentration of H positive ion. ओके, तो अब pH से ही हमने एक pH स्केल बनाया, और pH स्केल में है क्या, डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, और डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज पे जो pH स्केल का कलर होता है वो चेंज हो जाता है. मींस विद द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कलर ऑफ pH स्केल चेंजेस एट एवरी स्टेप. pH is very H positive ion concentration sensitive in nature. ओके, तो ये तो बात कर ली हमने pH स्केल होता है. अब कोई आपसे पूछे कि what is relation between concentration of H positive ion and pH of solution. Okay, so the answer is that you should remember pH is equal to minus of log of concentration of H positive ion or minus of log of concentration of hydronium ion H3O positive. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻⁴. इतनी कंसंट्रेशन दे दी मैंने, मोल्स पर लीटर कुछ भी लगा लो जो भी इसकी यूनिट है. तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मैंने आपको दे दी 10⁻⁴, और मैं आपसे पूछ लूं कि इस सॉल्यूशन की pH क्या होगी, तो इसकी pH कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला में पुट करते हैं. pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log of H पॉजिटिव कितना है, कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴. अब ये -4 आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना log के अंदर देखो जैसे ये फॉर्मूला होता है log m⁻n, तो यहाँ पे क्या होगा, n आगे आ जाता है और ये ऐसे बन जाता है ना. जो मैथ्स के बच्चे वो काफी इजीली इसको समझ पाएंगे. तो आप ये सिंपल ध्यान रखो कि log के मतलब कोई भी डिजिट है पीछे अगर उसकी कोई पावर है तो पावर आगे आ जाती है. तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 माइनस 4, एक माइनस ऑलरेडी था, और log 10, तो क्या बना 4 log 10, और log 10 कितना होता है 1. व्हाट इज log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो pH होगी उस सॉल्यूशन की 4. ओके, इतना समझ आया कि pH का H पॉजिटिव आयन के साथ किस तरह का रिलेशन है. तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन वेरी इनवर्सली विद pH.
ओके जितनी ज्यादा पीएच होगी उतना ही कम कंसंट्रेशन होगा H पॉजिटिव आयन का, और जितनी कम पीएच होगी उतना ही ज्यादा कंसंट्रेशन होगा हमारे H पॉजिटिव आयंस का। ओके तो अब बात करेंगे हम पीएच स्केल। ये तो पता लग गया हमें पीएच है क्या और पीएच किस तरह से H पॉजिटिव आयन के साथ वेरी करते हैं। अब स्केल की बात करते हैं हम। स्केल पीएच स्केल क्या है? बेसिकली एक स्केल ही है न्यूमेरिकल वैल्यूज का, जिसमें जो वैल्यू रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 40, 0 to 40। ठीक है अब मैं इसमें 14 लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ। लाइक ये कंसंट्रेशन है 0 पर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ठीक है तो ये 14 जो नंबर्स है ना न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये पीएच को मतलब रिप्रेजेंट करती है। दीज इंडिकेट पीएच, और इन पीएच के ऊपर जो कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन की वो अलग अलग है ना, तो जिसकी वजह से पीएच स्केल डिफरेंट कलर शो करेगा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पर। अब वो कलर कौन कौन से होते हैं, उनको कौन सी पीएच पर कौन सा कलर होता है उसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। उसको हम ट्रिक से याद करेंगे, ऐसे सिंपली वो लर्न नहीं होता है। तो आप ट्रिक पहले देखो। ट्रिक होती है रोए, ROY रोए, G गिव, BP, ये ध्यान रखना ये है गिव। रोए गिव बीपी, रोए बीपी देते हैं, मतलब ऐसे कुछ भी सिर्फ लर्न करने की एक ट्रिक है। तो अब यहाँ पे एक और ट्रिक देखो इसी के साथ साथ 1 1 2 5 3 3। सिर्फ इतनी सी ट्रिक से आप पूरा पीएच स्केल का जो कलर्स हैं वो लर्न कर सकते हो कि कौन सी पीएच पे कौन सा होगा। आप देखो समझते हैं इस ट्रिक को है क्या। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो प्लीज ये ट्रिक को देख लो, आपको काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। R stand for red, O for orange, Y for yellow, G for green, B for blue and P for purple। ओके ये तो समझ आ गया कि हमें कलर स्कीम है रॉय गिव बीपी। अब ये नंबर क्या है 1 1 2 5 3 3। देखो 1 for 1 फर्स्ट पीएच, फर्स्ट पीएच क्या है 0, फर्स्ट पीएच पे कौन सा कलर है रेड, तो 0 पीएच पे कौन सा कलर है रेड। ओके फिर उसके बाद 1 नेक्स्ट 1, ठीक है नेक्स्ट 1 पे कौन सा कलर है ऑरेंज, और नेक्स्ट 1 है कौन सा 1, तो यहाँ पे क्या कलर है ऑरेंज। फिर नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 2 पे क्या कलर है येलो, येलो नेक्स्ट 2 मींस अगर पीएच 2 और 3 है तो कलर क्या हो जाएगा येलो। एक बात ध्यान रखो जो डार्क कलर होते हैं ना वो 0 पीएच की साइड पर होते हैं, और जो लाइट कलर्स हैं वो 14 पीएच की साइड पर होते हैं। ठीक है तो अब नेक्स्ट देखो 5 मींस नेक्स्ट 5 पीएच 4 5 6 7 8, यानी कि 4 to 8 पर जो कलर होंगे वो होगा ग्रीन। फिर नेक्स्ट 3 9 10 11, नेक्स्ट 3 पर कौन सा कलर होगा ब्लू। अब नेक्स्ट 3 देखो नेक्स्ट 3 ब्लू था, फिर उससे नेक्स्ट 3 पर्पल, यानी कि 12 13 14 इन 3 पीएच पर क्या होगा पर्पल कलर होगा। डार्क साइड जो कलर्स की होगी वो 0 पीएच की साइड पर होगी, और जो लाइट कलर्स है वो 14 पीएच की साइड पर होंगे। ठीक है तो ये ट्रिक थी याद करने की, फटाफट इसको रिमाइंड करते हैं। रॉय गिव बीपी ROYGBP और न्यूमेरिकल्स 1 1 2 5 3 3। तो रॉय गिव बीपी 1 1 2 5, इससे आप चुटकियों में पीएच बता सकोगे कि कौन सा कलर अगर आपको पीएच स्केल पर दिया हुआ है तो उसकी पीएच क्या है। ठीक है ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिक काम आती है। ठीक है अब बात करेंगे कि मैंने रेंज की बात करी 0 से 7 और फिर 14 के बीच में थी रेंज। ठीक है अब 0 से 7 के बीच में अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच है तो दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, एंड 7 to 14 अगर कोई पीएच है तो दैट विल बी बेसिक इन नेचर, एंड एट 7 इट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो इतनी बात समझ में आई, पीएच के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। अब आती है इंपॉर्टेंस की पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम खुद से, मतलब ह्यूमन बॉडी से। ह्यूमन बॉडी पीएच सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा, और एक पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही काम करती है। ठीक है एंड दैट पीएच रेंज इज 7.0 to 7.5।
8। इसी के बीच में हमारी ह्यूमन बॉडी काम करेगी। अगर पीएच इससे ऊपर या नीचे है तो फिर हमारी बॉडी में प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो अब जैसे हमारा प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड की पीएच होती है 7.4। ठीक है, ये हमारी बॉडी की वर्किंग मतलब वो है स्ट्रेटजी है कि हमारी बॉडी बेसिकली अल्कलाइन इन्वायरमेंट में ही काम करती है, मतलब बेसिक इन्वायरमेंट में ही काम करती है। अब उसके बाद देखें कि जिस सॉइल के अंदर हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिसमें पेड़ पौधे सब उगते हैं, वो भी ज़्यादा काफ़ी पीएच सेंसिटिव होता है। अगर उसमें भी पीएच चेंज हो गया तो जो प्लांट की ग्रोथ है या तो सप्रेस हो जाती है या उसमें कोई डिजीज आ जाती है या उसकी ग्रोथ ही बिल्कुल रुक जाती है। तो प्लांट्स या सॉइल इज ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू पीएच। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसिड रेन की। बच्चों एसिड रेन में क्या होता है कि अगर पीएच रेन की 5.6 याद रखो 5.6 से कम है तो एसिड रेन होता है। रेन की पीएच अगर 5.6 से कम है तो हम बोलेंगे कि एसिडिक रेन हो रहा है। और एसिडिक रेन का आपको बहुत पता ही होगा ऑलरेडी कि बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। अब एसिडिक रेन की वजह से जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है दैट इज टर्निंग येलो इन कलर। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पीएच के हमने अभी तक पढ़े हैं यूजेस या उसकी इम्पोर्टेंस। फिर हम बात करेंगे टूथ डिके की। टूथ डिके बेसिकली कब होता है? जब हम खाना खा के बिना अपना माउथ वॉश किए या बिना ब्रश किए हम ऐसे ही सो जाते हैं तो नाइट टाइम में क्या होता है बैक्टीरिया और वायरसेस काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर और वो टूथ डिके स्टार्ट कर देते हैं। अब जो एक्टिवेशन हो रहा है बैक्टीरियाज का उससे क्या होता है जो हमारे बक्कल कैविटी है उसका पीएच बहुत ज्यादा कम चला जाता है, वो 5.5 से कम हो जाता है। और जब 5.5 से कम होता है तो वहां पर हमारे जो एनिमल है टीथ का वो सड़ना गड़ना स्टार्ट हो जाता है और वहीं से टूथ डिके की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब आता है कि जो पीएच है, पीएच से जो इन्वायरमेंट के अंदर हमारा नेचर है, नेचर इज फुल ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दे यूज नेचुरल वेपन्स टू डिफेंस देमसेल्फ फ्रॉम अगेंस्ट द एनिमीज। ओके, ऐसी बात करेंगे हम जैसे बीज हैं, है ना, बी या आंट है, जब हमें मतलब कुछ भी हम उसके साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं तब वो हमें अपना स्टंग मार देती है तो उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में काफी ज्यादा इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। तो वो करते क्या है बेसिकली अपने जो एंटीना से वो मिथेनोइक एसिड सिक्रीट करते हैं और वो मिथेनोइक एसिड जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो इरिटेशन कॉज करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे जो आंट होता है और बी स्टिंग है दोनों में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये डिफेंस वेपन है जो आंट और बी यूज करती हैं टू डिफेंड देमसेल्फ अगेंस्ट द एनिमीज। ओके, ऐसे प्लांट्स है, एक प्लांट है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट बेसिकली बच्चों नेचर में पाया जाता है इन फॉरेस्ट और ये क्या करता है फॉर्मिक एसिड सिक्रीट करता है। मतलब इसकी जो लीव्स के ऊपर ऐसे मतलब कांटे कांटे से होते हैं और जब आप उनको टच करोगे ना तो दैट विल सिक्रीट मिथेनोइक प्लांट एंड दैट कॉज इरिटेशन इन आवर बॉडी। अब नेचर ने अगर पावर दी है किसी को अपने एनिमीज से लड़ने के लिए तो मतलब जो अपोजिशन पार्टी है उसको भी एक पावर मिलती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो अब जो नेटल प्लांट है उसी के साइड में उगता है मतलब डॉग प्लांट। नेटल प्लांट तो एसिड सिक्रीट करके हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी मींस कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नेटल प्लांट के अराउंड है वो उसे टच कर लेगा तो। अब डॉग प्लांट क्या होता है मतलब एल्केलाइन है नेचर के अंदर जो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी पीएच की हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया कि सोल्ट की पीएच। सोल्ट की पीएच बच्चों देखो सोल्ट क्या होता है बेसिकली एसिड और बेस। एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं तब उससे सोल्ट बनता है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ सोल्ट की फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सोल्ट क्या होता है मतलब वैसे जनरली न्यूट्रल होता है नेचर में बट अगर सोल्ट बन रहा है किससे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस एसिड देखो इसको टेबल बना देते हैं एसिड और बेस। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो जो पीएच होगी वो क्या होगी 7। ओके,
अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा जो है वो वीक है तो pH विल बी लेस देन 7। अगर एसिड हमारे पास वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो pH विल बी ग्रेटर देन 7। ओके तो ये था pH ऑफ सोल्ट कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हैं तो pH क्या होगी 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर कोई सॉल्ट बने तो pH विल बी लेस देन 7। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर pH मतलब सॉल्ट बना है तो उसकी pH क्या होगी 7 से ज्यादा। मतलब 7 से कम एसिडिक इन नेचर, 7 से ज्यादा अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर एंड एट द 7 इट इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लेक्चर के अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर बताएं। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम बात करेंगे अबाउट सॉल्ट फैमिली। थैंक यू।